very important as a parent, as a caregiver, as a teacher to understand what are the challenges and how can we overcome those challenges. So first of all, I would like to understand that in your center, how many kids you get who are struggling with ADL skills and what kind of struggles do you face? If anybody could answer that. Like since you have an NGO and you come across a lot of children who are on the spectrum or who are struggling with the GDD or CP or other kind of neurodevelopmental disorders. So what are the main challenges which you come across? The parent comes to you, so what are the main challenges? Toilet training. So they have problems in going to the washroom or they just forget the steps? What is the main problem in that? They forget the steps. Okay. So how do you assist with that? If they forget the steps, what technique do you use to sustain that thing in their memory? Because we know that they are visual learners, okay? So when they go to the washroom, so they don't know when to flush the toilet, or even they skip the step of washing their hands because they are not aware of the personal hygiene. They are not aware about, they need to flush the toilet or they need to clean their hands. So in that case, what we can do? We can create a visual chart. We know autism children are very good visual learners. So we can create a visual chart and we can create a step by step. Like first we need to go to washroom, what we do, and then we can just stick it in the washroom. So this is how it goes for all the activities. They can't cope up with the environment. It's not their fault. Their brain is functioned like that. But then it is not impossible to achieve any kind of target. All we have to do is to be very patient with them and to be very consistent. Consistency is the key to success. My own child was purely autistic. He was non-verbal. All doctors told me that he would not be able to talk, he would not be able to communicate. He is studying over here, he can communicate, he can understand. But yes, there are academic challenges which we are overcoming slowly. Nothing is impossible if we follow our process, if we follow our protocol in terms of speech also, in terms of understanding also, ADL also, so we can of course achieve it. Now let's talk about some kind of life skill activities. So life skill activities it comes a lot of things. It comes personal hygiene, it comes dressing yourself, making bed, using washing machine, preparing simple meals for yourself. Some teachers are Okay, bilingual. Okay, so Hindi. Okay. तो there are some kids, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको रोजमर्रा के काम करने में तकलीफ होती है, they have issues, okay? तो उस सिचुएशन में हमने एक लिस्ट बनाई है. However, the list is like यहाँ पे थोड़े छोटे बच्चों वाली लिस्ट बनाई है because as a therapist you do assessment first of all. You need to assess the child कि कौन सा बच्चा किस उम्र के काबिल है कि वो ADL स्किल्स को परफॉर्म कर सके. क्योंकि अगर हम टीनेजर की बात करें तो उस समय ADL स्किल्स अलग होंगे और जो बच्चा 2 से 7 साल की उम्र का उसके ADL स्किल्स अलग होंगे. सो जब बच्चा छोटा होता है तो हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? हम बच्चे को पहले ट्रेन करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग में, ब्रशिंग में, बाथरूम कैसे यूज़ करना है, नहाना धोना कैसे है, साबुन कैसे अप्लाई करना है, शावर कैसे लेना है, क्योंकि वो एक बेसिक नीड है. हम पेरेंट्स, थेरेपिस्ट हमेशा बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं. सो दे हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस बिगिंस फ्रॉम होम ओनली. If you teach the child, if you empower the parents, if you give them a step-by-step program, so you will be able to achieve those milestones. Because we know कि इनके जो milestones होते हैं वो भी delayed होते हैं काफ़ी सारे बच्चों में, not in every kid, but of course जो इनका काम होता है वो delayed होता है. So यहाँ पे हमने कुछ लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ की बात करी है, जैसे कि हमने पर्सनल हाइजीन को लिया है. आपको पता है पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है? ड्रेसिंग योरसेल्फ, मेकिंग बेड, वॉशिंग मशीन को यूज़ करना, सिंपल खाना बनाना
अपना सैंडविच बना लेना, अपने लिए चाट बना लेना, कटिंग कर लेना, बहुत सारी चीज़ें जो हम बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। उनको सब्जी दे दी काटने के लिए, उनको चॉपिंग सिखाया। अगर वो नाइफ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बोर्ड दे के और बड़ी वाली नाइफ को यूज़ करने के लिए दिया। चॉपिंग के लिए आप उनको जो चॉपर्स होते हैं, बिकॉज क्या होता है कि वो जो जूसर होता है जिसमें हम वो चॉपिंग का वो यूज़ करते हैं, उससे उनको सेंसरी इश्यूज होता है, तो उसका साउंड बहुत तेज़ होता है। तो कई बार क्या होता है, वो उससे अनकम्फर्टेबल फील होता है और उससे एक रिस्क फैक्टर होता है। तो जब भी हम कुकिंग या कटिंग स्टार्ट करें तो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। कुकिंग के लिए हम इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को गैस का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इंडक्शन एकदम सेफ होता है। इंडक्शन में कोई हाथ जलने का या बिकॉज दे डोंट हैव द सेंस ऑल्सो। बहुत सारे बच्चों को सेंस नहीं होता कि फायर को टच करना है कि नहीं करना है। तो मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि किस समय पे कौन सा काम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस समय पे क्या चीज़ एक्सपेक्ट हम उनसे कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मनी मैनेजमेंट एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम स्टोरी इंट्रोड्यूस करते हैं कि पहले हम उनको पॉइंट्स का कंसेप्ट सिखाएं, फिर हम उनको मनी का कंसेप्ट सिखाएं। घर में हमें प्ले वे मेथड से उनको सिखाएं कि मम्मी यहाँ पे है और तुम आज बायर हो, या हम कुछ इंटरैक्टिव रिसोर्सेज को यूज़ करें जो कि हैंड्स ऑन हो। जैसे कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया कि मैं आज बायर हूँ और तुम सेलर हो। इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, इट हैज़ टू बी लाइक प्ले वे मेथड। हाँ जी, जैसे कि आपने शॉपिंग बैग बना लिया, एक बोर्ड बना लिया, उस पर आपने जो भी सामान है उनके आइटम्स के आपने वॉल क्लोथ से वो चिपका दिए। Then you can ask the child that today we are going for shopping, okay? So mama is going to buy stuff from you. So start with small things like 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees. ऐसे करके धीरे-धीरे we can upgrade the level. Then polishing your shoes, it's a very basic thing. बच्चे स्कूल जाते हैं। अब ये वाले जो है लेफ्ट साइड वाले, ये है छोटे बच्चों के लिए। मतलब मैंने एक कॉन्क्रीट सी एक लिस्ट बनाई है। वो वाला आ जाता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है। सी ऑटिज्म की कोई एज डिफाइन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं छोटा बड़ा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि देखो झिल्ली वाला पार्ट है पर्सनल हाइजीन, ये हमारा 5 से 7 साल तक डेवलप हो जाना चाहिए। जब बच्चा हमारा 10 ईयर से अबव हो गया तो उसको स्किल्स क्या आने चाहिए? उसको स्किल्स आने चाहिए कि वो अपने लिए टैक्सी बुक कर सके, उसको स्किल्स आने चाहिए कि वो ATM कार्ड को यूज़ करना जाने, उसको आना चाहिए कि वो ईमेल लिख पाए, वो अपने लिए खाना ऑर्डर कर सके। मतलब ये जो स्किल्स है ये थोड़े एडवांस है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो हम उसको एडवांस स्टेज पे लेके जाएंगे। हम जब छोटेपन से बच्चे की ट्रेनिंग करेंगे, हम उनको इनकलकेट करेंगे वो सारी चीज़ें, तो वो बड़े होने पे वो सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, whichever way you are comfortable, you can make notes of it. Otherwise, you can get a whole list of ADL skills online also. आप Google करोगे, you will get an entire list. This just has been created just to explain to all of you. हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं when we are no more. हर पेरेंट्स का यही सवाल रहता है कि जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, उसका क्या होगा? पेरेंट्स हैव दिस क्वेश्चन बिकॉज वी फील कि अभी हम इनके लिए कर दे रहे हैं, तो संभाल रहे हैं सब कुछ क्लियर। अगर बच्चे का खाने का मन है तो मैं ही बोलती हूँ कि चलो मैं ला देती हूँ, आज मैं हेल्प कर देती हूँ। इट्स क्वाइट नेचुरल है। एज अ मदर यू फील कि जो भी है आप अपने बेस्ट कर सकते हो, आप अपने बच्चे को दो, बट देन आप हमेशा नहीं रहने वाले। तो इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टू मेक देम इंडिपेंडेंट। सो इससे हमें क्या होता है कि बच्चा लर्न करना शुरू करता है, उसकी अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, उसकी सेल्फ इस्टीम में फ़र्क आता है, बिकॉज हम उसको एक स्टेप लेकर जा रहे हैं इंडिपेंडेंस की तरफ। हम हमेशा फोकस करते हैं कि बच्चा अकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, बट द मेन थिंग which is very important is developing independence. That means रोज़मर्रा के काम बच्चे को कितना आते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम राइट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का कॉग्निटिव लेवल, बिहेवियर लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल डिफरेंट है,
One child cannot be compared with another child. एक बच्चा एक स्पेस में रह के जल्दी सीख जाएगा, दूसरे को बहुत टाइम लगेगा या उसको बहुत सारे रेपिटेशंस देने पड़ेंगे. तो इस चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि पेशेंस. आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, बिकॉज कोई भी स्किल जो होता है वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होता. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स, एंड वो दोनों तरफ से होती है, टीचर्स as well as the parents, not just teachers. If parents think, parents also come to me that this skill is not developed. If parents think it will happen overnight, it will not happen. It will take a lot of time. But then, if you are consistent, if you are following the protocol, which is a step-by-step process, so of course nothing is impossible. Any questions? Anybody want to ask? कुछ आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ लीजिए. बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स की. मैंने इस पे कुछ पॉइंट्स बनाए, आप प्लीज इसका पिक्चर ले लीजिए. तो लाइफ स्किल्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला, इंडिपेंडेंस लिविंग. ओके, द चाइल्ड नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होगा तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ेगी. अगर किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा तो ऑफ कोर्स बच्चे को भी लगता है, एंड जो बच्चे का स्पीच डेवलप हो चुका है, बिकॉज देयर आर सेवरल लेवल्स इन ऑटिज्म. सम आर वेरी माइल्ड, सम आर मॉडरेट, सम आर सिवियर. सो सम चिल्ड्रन फील लिटिल अशेम्ड, यू नो, किसी को कुछ बोलना, अभी वो वॉशरूम गए एंड दे कांट, यू नो, टाई देयर पैंट्स और दे कांट बटन देयर क्लोथ्स. So it is little embarrassing for them as well. So it's really important that we begin this process at a very early age. So ये क्या होता है कि ऐसा जब हम बच्चे को ट्रेन करते हैं तो बच्चा क्या करता है, पेरेंट्स को एक फ्यूचर स्ट्रेस कम हो जाता है. पेरेंट्स को लगता है कि यस, कि हमने जो अचीव करना था हमने उसको टाइम से अचीव किया, तो एक पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा. दूसरा क्या होगा कि चाइल्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आएगी. जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करेंगे, उसको पता होगा कि मेरे से ये एक्सपेक्टेड है, तो वो एक डिसीजन मेकर बनेगा. और वही हमारा गोल है कि हम बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करें कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बने. जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं तो हम उनके लिए क्या बोलते हैं, जैसे पेरेंट्स come to me and they ask me that my child was pointing here and he does not have words, but he was pointing here. So I said, don't provide until and unless you give, until and unless you tell the child कि पहले आप मेरे को बोल के बताओगे कि आपको क्या चाहिए. उसको ऑप्शंस दो, उसका एक बोर्ड बना के रखो खाने का कि तुमको बिस्किट चाहिए, तुमको फ्रूट्स चाहिए. कोशिश तो करेगा, बोलेगा तो सही, ठीक है, पूरा नहीं बोलेगा कि मुझे खाना दे दो या मुझे बिस्किट दे दो या मुझे वेफर्स दे दो, बट देन द चाइल्ड विल एटलीस्ट ट्राई. तो ट्राई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज अगर बच्चा ट्राई नहीं करेगा तो हम स्पीच कैसे डेवलप करेंगे. और आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. हम लोग एक टर्म यूज करते हैं स्पीच के लिए, प्री लैंग्वेज स्किल्स. प्री लैंग्वेज स्किल्स ये होते हैं कि जैसे कि हमें कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं जिसपे हम कम्युनिकेशन अगर मीनिंगफुली डेवलप करें, तो उसके लिए प्री लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. उसके लिए हम दोबारा बात करेंगे बिकॉज वो बहुत एक लंबा टॉपिक है. सो देन लाइफ स्किल से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी कि वो पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को ये लगेगा कि हमने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया. अगर हम बच्चों के साथ नहीं भी रहे, पेरेंट्स नहीं भी रहे, तो बच्चा इतना काबिल होगा, इतना टैलेंट हम उसके अंदर फॉस्टर कर देंगे कि वो अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल वे में जी सके. बिकॉज नॉर्मल स्किल्स होना तो बहुत ज़रूरी है ना. अपने कपड़े पहनना, नहाना धोना, टाइम देखना, मार्केट जाके कुछ सामान लेकर आना, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बच्चे जो होते हैं हमारे, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप लोगों ने भी बोला कि यू फेस द प्रॉब्लम कि बच्चे स्टेप्स भूल जाते हैं. तो हम उनको क्या कर सकते हैं कि हम उनकी टास्क को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. टीचिंग वन स्टेप एट अ टाइम. हम सारे स्टेप्स को मिक्स ना करें,
फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, जैसे कि बच्चे ने ब्रश किया हाथ में, तो बच्चे को नहीं पता कि मेरे को नल का खोल के ब्रश को क्या करना है, वेट करना है, फिर मुझे टूथपेस्ट को खोल के उसको पेस्ट को ब्रश पे लगाना है। तो वो क्या होता है कि हम बोलते रहते हैं करो करो, तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हें आ नहीं रहा है, नहीं आता उनको एकदम से, बिकॉज दे आर विजुअल लर्नर्स, दे आर स्पेशल लर्नर्स, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ, देयर ब्रेन इज प्रोसेसिंग इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। और बहुत सारे बच्चों के साथ तो सेंसरी इश्यूज भी होते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता पेस्ट करना, उनको टूथपेस्ट का जो फ्लेवर होता है वो कई बार पसंद नहीं आता है, या उनको इरिटेशन होती है, तो दैट्स व्हाई आल्सो दे अवॉइड, वो ब्रश करना अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से अच्छा नहीं लगता। हम अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं बट उनको प्रॉब्लम हो रही है अंदर से, दैट्स व्हाई दे आर अवॉइडिंग। बट देन हमें फिगर आउट करना है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। एडीएल स्किल्स के लिए एटलीस्ट आई वांट कि 1 आवर हमेशा देना चाहिए, बिकॉज एडीएल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है शायद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा सीख जाएगा, अपने आप कर लेगा, या अभी तो बहुत छोटा है, इसके सारे माइलस्टोन्स डिलेड है, कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे। नो, अगर आपको करवाना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से, और आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ में या एबीए थेरेपिस्ट के साथ में इन टास्क को सीखना पड़ेगा। और ये टास्क बहुत बेसिक होती हैं, जैसे मैंने बोला कि टॉयलेट ट्रेनिंग और चीज़ों के लिए हम विजुअल्स को यूज़ कर सकते हैं, बटन एंड बटन के लिए हमने उन फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम कार्ड्स और क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम डेवलप करेंगे, और अगर उनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर हम ये ट्रेनिंग पेरेंट्स और प्रोफेशनल साथ में मिलकर करते हैं तो जर्नी स्मूथ हो जाती है। अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाली स्कूल से बच्चा सीख के आएगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, इट हैज़ टू बी अ रिपीटेड कॉल एट होम ऑल्सो। और हमारे पास घर में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, सुबह का बेड बनाने से लेकर चीज़ों को संभालना, ऑर्गेनाइज करना, हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं। इट कैन बी फन एक्टिविटी ऑल्सो कि ग्लासेस को तुम स्टार्ट करो, देखो कितने ग्लासेस हैं, कितनी कटोरी है, चलो उसको ड्रॉर में रखो, बताओ मुझे कितनी स्पून्स हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे का माइंड फंक्शन करता है, बच्चे की कॉग्निटिव लेवल्स इन्हांस होते हैं। हमारा मेन मोटो क्या है कि हम कॉग्निटिव लेवल्स को इन्हांस करें, और अगर हम इनके साथ में इस तरीके से काम करते हैं तो इनकी एडीएल में भी फर्क आता है। अगर हम घर में नहीं है तो हम घर में नहीं है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है फॉर एग्जाम्पल, सो एटलीस्ट बच्चा इतना तो हो कि वो अपने लिए सैंडविच बना ले, है ना, ब्रेड ली, ब्रेड के ऊपर कुछ लगा के, स्प्रेड लगा के, बेसिक कटिंग जानता है तो उसको फ्रूट काट के खा लिया। तो ये स्किल्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं डेवलप करने। और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अगर हम विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं तो एंजाइटी के इश्यूज नहीं होते हैं। अगर हमने देखा होगा कि अगर हम बच्चे को एक टास्क से दूसरी टास्क में लेकर जाते हैं, सो देयर आर ट्रांजिशंस, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजिशन इन द रूटीन, सो द सिचुएशंस बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल। इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरे को पता नहीं होता, आई डिडंट हैव दैट नॉलेज कि हम लोगों ने हॉलीडे प्लान कर ली एंड वी वेंट टू कश्मीर, and he was so cranky the entire trip because he was not able to understand कि मेरे को कहाँ लेके गए और क्यों लेके गए। हम उसको बोल रहे हैं कि खेलो, चलो बोटिंग करते हैं, but he is shouting, he is crying, he is lying on the floor because उसको अभी अपना कंफर्ट जोन पता था कि मैं घर पे रहता हूँ, मैं उठता हूँ, फिर मैं थेरेपी के जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं शाम को गार्डन जाता हूँ, ऐसे ऐसे करके। When we come back to our teaching, like we are handling children with different needs in our class. So, बहुत सारे टीचर्स का ये कहना होता है कि कि जब हम क्लास में बच्चों को टेक्स्ट बुक्स कैसे निकलवाएं, नोटबुक्स कैसे निकलवाएं, कैसे करें। So I think one tip that we got from today's thing was कि visual chart create करके रखें हम क्लास में, हर क्लास में
if we have the visuals there and integration visual के पास हो, so without your needing to tell the child, उसको मालूम है step 1 के बाद मुझे कौन सा step करना है, step के बाद कौन सा step. So one thing is I think is this that we can try in the classes, right? Second thing is social stories. थोड़ा social stories के बारे में अगर आप हमें और बताओ तो maybe we can convert our textbook knowledge into social stories for them to understand things better. जब आप लोग भी इंक्लूजन के लिए बच्चों को रेडी करते हो तो एटलीस्ट बच्चों को कैसे वो चीज़ सिखाई जाए. Table manners, going to school, making friends, how to behave, what is the use of hands, because most of our children are hitting, slapping, they are hyperactive, so they don't know कि hands किस लिए use होते हैं. So आप पेपा पिग की स्टोरीज इंट्रोड्यूस करो क्लासरूम्स के अंदर. जिस बच्चे का जो स्किल जहाँ पे लैकिंग है, जिस बच्चे को अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको पहले, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है उसको गेम खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले उसको सोशल स्टोरी सुनाएं कि हम गेम खेलते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम ये करते हैं तो हम ऐसे बनते हैं. तो वो सोशल स्टोरीज इतनी अच्छी और फैसिनेटिंग होती हैं कि वो बच्चा उससे काफ़ी हद तक समझ आता है उनको, और उनका जो एंजाइटी लेवल होता है वो लिटिल लोअर डाउन हो जाता है. सो दे आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड विद द सिचुएशन कि अभी मुझे स्पोर्ट्स के लिए जाना है, बट मेरी मैम ने मुझे समझाया है अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलूँगा तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूँगा. सो देन दे विल पार्टिसिपेट. जब उसने वो टास्क कंप्लीट कर ली तो हमेशा उसको रीइंफोर्समेंट देती है, उसको रिवॉर्ड देते हैं, कुछ भी छोटा सा हो जो उसके इंटरेस्ट का हो.